کچھ ایسے بھی متاثرین ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کس خاک سے بنے ہیں، کیا چیز ہے۔ آخر تم لوگوں کو بھی ادھر سے ہم لوگ خاک کریں گے اور اس ملک سے تم لوگوں کا نام و نشان مٹا کر رہیں گے۔ ایک خلاصی محسوس ہوتی ہے، کبھی نہ پر ہونے والی۔ بروز جمعہ 18 رمضان المبارک 1432 ہجری بمطابق 19 اگست سن 2011، وقت دوپہر 1:40، جب خیبر ایجنسی کی تحصیل جمرود کے علاقے غونڈی کی جامع مسجد کے اندر خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں 65 سے زائد نمازی شہید اور 150 سے زائد زخمی ہو جاتے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق نماز جمعے کی ادائیگی کے بعد لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے کہ ایک 16 سالہ نوجوان نے مسجد میں داخل ہو کر خودکش دھماکہ کر دیا۔ اس نے پچھلی صف میں گھس کر خود کو اڑا دیا۔ میں یہاں پہ کھڑا تھا تو فرض ہو گیا، فرض کے بعد سنت ہو گیا، تو سنت کے بعد ایک رکعت پڑھا، دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو دیکھا تو سامنے سے بالکل آواز آ گیا، تو اس کے بعد لوگ گر گیا، آوازیں سنے تو میں خود بے ہوش ہو گیا۔ خودکش بمبار یہاں پہ آ گیا تو سنت کے دوران، تو یہاں سب بچے بھی کھڑے تھے، بوڑھے بھی تھے، تو اس نے یہاں پہ خود کو اڑایا۔ جب دھماکہ ہوا تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور زخمی گرتے دیکھے، پھر میں بے ہوش ہو گیا اور مجھے پتا چلا کہ میرا پورا جسم تقریباً جل گیا ہے اور زندگی کی امید کم ہے۔ اس دھماکے میں بہت سے لوگ زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے اور یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ دھماکے کے وقت المدینہ مسجد میں 500 سے زائد نمازی موجود تھے۔ خودکش دھماکے سے مسجد کی چھت اڑ گئی، دیواروں، کھڑکیوں اور دروازوں کو شدید نقصان پہنچا، ہر طرف خون اور انسانی اعضاء بکھر گئے۔ ابتدائی طور پر مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں اور جاں بحق ہونے والوں کو پشاور کے ہسپتالوں میں منتقل کیا۔ بعد میں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ 150 سے زائد زخمیوں کی کیا بات کریں۔ 65 افراد جو شہید ہو گئے وہ اصل میں 65 خاندان تھے جو اجڑ گئے۔ کس کس کا ماتم کریں، کس کس کو پرسا دیں اور کس کس کو تسلی دیں کہ انہی 65 متاثرہ خاندانوں میں ہماری نظر 20 سالہ فیصل خان پر پڑتی ہے۔ وہ اس دھماکے کے نتیجے میں موقع پر ہی شہید ہو گیا تھا۔ خودکش دھماکہ، ہر طرف دھواں دھواں، پھر ہر چہرہ اس دھوئیں میں گم۔ فیصل کا چہرہ بھی اپنے پیاروں کے ذہن میں یاد بن کر نقش ہو گیا۔ اور کی جاگاڑے نکاولے۔ اخلاق تو ان کا بہت ہی اچھا تھا، سب کا ادب کرتا تھا، بڑوں کی عزت کرتا تھا، مجھے سیر کرانے لے جاتا تھا، اور عید کے موقع پر جب میرے لیے اچھے اچھے کپڑے لاتا تو میں اور خوش ہوتا۔ ظاہر ہے کہ فیصل ہی ہماری خواہشیں پوری کیا کرتا تھا۔ چکر ویرا کولو فیصل خو اولا سے 1200 کولو خالقو، بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا، پڑھائی ہو یا بھائیوں اور بہنوں کی دیکھ بھال، ہر معاملے میں وہ بچہ اچھا تھا۔ 18 سال اس کی عمر تھی، مگر اس کی قسمت کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا اور دھماکے میں شہید ہو گیا، اور مجھے بہت دکھ ہے۔ خبر شو کنا جب دھماکے کی آواز تو میں نے بھی سنی تھی، اور جب فیصل بھائی کا سنا تو میں سمجھ گیا کہ اب ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، لیکن کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے جمرود کے علاقے غونڈی کی واحد اور بڑی جامع مسجد، اور اسے کہا جاتا ہے
जामा मस्जिद अल मदीना, इसमें एक मदरसा भी है और तकरीबन 600 से जायद नमाजियों की गुंजाइश भी। धमाके के वक्त यहाँ 500 से जायद अफराद नमाज अदा कर रहे थे। गो कि अब इस शहीद होने वाली मस्जिद की तामीर नौ जारी है, मगर इसके दरो दीवार पर शहदा का लगा खून दीगर अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि नाहक कत्ल करने वालों को क्या मिला और जिनकी जानें गईं उनका कसूर क्या था। 2 उसका भाई है, 3 उसका बहन है। 2 मजदूर है, उसका जो भाई है और जो बहन है वो ठीक है, उससे ये चल सकते हैं, लेकिन ये 2 जो है ना नहीं चल सकते। जो भी या बड़ा हो, बुजुर्ग हो या इससे छोटा हो या बड़ा हो, इसके इतना अखलाक का चाहे हर आदमी उसको याद कर रहा है। जो भी इधर से गली से गुजरता है या फैक्ट्री में काम कर रहा था तो उसको जब भी रोटी का टाइम होता था उसको रोटी को बुलाता है कि आ जाओ रोटी आपको खिलाते हैं, या अगर चाय का टाइम होता तो चाय उसको पिलाता था। इतना इखलास था उसके उसमें। वैसे बंदा अच्छा था, उसका इंसानियत बहुत ज़्यादा था। बस ख्वाहिश उसका ये कारोबार का ख्वाहिश उसका बहुत ज़्यादा था। उसने खुद एक बार मुझे उसका कहा था कि ना मुझे कुछ कारोबार के लिए कुछ पैसे मेरे बाप से मंगवा लेने चाहिए, मैं कोई ऐसे कारोबार करता हूँ जो कुछ ना कुछ मेहनत तब की मजदूरी करता हूँ। मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम करता था। उसको पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी ये भी ख्वाहिश थी कि मैं दीनी सबक हासिल करूं, स्कूल जाऊं और आम इंसानों की तरह चलना फिरना करूं, मगर उसकी ये ख्वाहिश दब गई इसलिए कि वो धमाके में शहीद हो गया। सबने कहा फैसल मर गया। पैदाइश के 1 साल बाद माजूर है। मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। फैसल के दोनों भाई गुलदयाज खान और अकरमुल्ला हड्डियों की पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हैं। वो इन दोनों माजूर भाइयों का वाहिद सहारा था। क्रिकेट के शौकीन 9 साला अकरमुल्ला अपनी इस ख्वाहिश की तस्कीन किस तरह करते हैं ये पूरा गांव जानता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुतासरीन में शामिल ये माजूर बच्चा भी अपने भाई फैसल को बेहद याद करता है, क्योंकि वो इनकी हर ख्वाहिश और फरमाइश अपनी बिसात के मुताबिक पूरी किया करता था। फैसल मेरा बड़ा भाई है और फरमाइश के पूरा है। हर तरह की ख्वाहिश जैसे अमरूद, अनार, सेब वगैरह वगैरह जो मुझे खाने का शौक है ला देता था। माना वगैरह वगैरह। खरोह के गुलगुले, छोले, चटनी, बस। रसगुल्ले, चॉकलेट, कबाब, बिस्किट वगैरह वगैरह हर चीज़ मुझे पसंद है और वो लाया करता था। ईद के कपड़े लाता था, ईदी देता था। वो जानता था कि अकरमुल्ला को क्या क्या पसंद है। जब जुम्मे का दिन होता तो वो मुझे सैर पर ले जाता अपनी पीठ पर बैठा के। अभी बसरा वास्तु जिद ऐसे कोई बात इसमें जिद नहीं की, लेकिन जो ये छोटे उसका भाई था ना, जो भी फरमाइश कर रहा था उसको पूरा कर रहा था। ये छोटे खिलौने के था, जो भी पिस्तौल खिलौने का ये गाड़ी था तो इसमें इज्जत कर रहा था छोटे बच्चे, तो उसको ये पूरा कर रहा था फैसल ने छोटे भाई का। और रात को ड्यूटी कर रहा था ना फैक्ट्री में, तो दिन में सोता था और रात में ड्यूटी कर रहा था। तकरीबन 1 हफ्ता पहले उससे मेरी बात हुई थी ये गाड़ी के बारे में कि मेरे लिए कोई गाड़ी का बंदोबस्त करो ताकि मैं मजदूरी करूं। ये फैक्ट्री से मैं तंग आ चुका हूं, सारे रात को मैं ड्यूटी करता हूं माचिस फैक्ट्री में ताकि मैं अपना काम कर सकूं। तो इसकी ये ख्वाहिश थी। मासूम फूल खिलने से पहले मुरझाते रहे, इसलिए कि मुल्क में फैली इस दहशतगर्दी ने कई बाग उजाड़े हैं, हंसते बसते घरों को वीरान कर दिया है, बल्कि कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है।
जब मैंने धमाके की आवाज सुनी तो मैंने सबको फोन किया कि मुझे बताओ हुआ क्या है। दोपहर के वक्त धमाका हुआ और मैं उस वक्त घर आ गया था, जल्दी में था और जरूरी काम भी था, इसलिए मैं किसी और मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। बस ये इत्तेफाक है, मगर ये अफसोस की बात है कि शहीद और जख्मी होने वालों के लवाहिकीन अब बेसहारा हो गए हैं। मैं मार्केट में कारखाना मार्केट में था, किसी ने फ़ोन किया कि आपके घर में गांव में मस्जिद में धमाका हुआ है। जब उधर से मैं निकला था मार्केट से तो रास्ते में सारा एम्बुलेंस और गाड़ी में जो जख्मी और मर्द थे सारा बस अस्पताल लेके आ रहे थे। तो जब मैंने देखा तो उस टाइम मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया। जब मैंने उसे देखा इसलिए कि मेरा एक ही भतीजा था, यही कमाने वाला था। जब मैंने सोचा कि ये ज़रिया भी ख़त्म हो जाए तो हम क्या करेगा इसमें। तो जब देखा तो बहुत कोशिश किया, लेकिन बस अल्लाह को यही मंजूर था। ये गुलदयास खान ने बताया कि फैसल मस्जिद में नहीं है, किधर गया है, ज़ख्मी हुआ है हालत में, मुर्दा है, ज़ख्मी क्या है। तो गुलदयास ने फ़ोन किया कि हालत बहुत ख़राब है, गुलदयास नहीं मिल रहा है। इसलिए कि तकरीबन 500-600 नमाजी पर नमाज़ पढ़ रहे हैं मस्जिद में, तो उसको पता नहीं चल रहा था कि फैसल किधर है, नीचे पड़ा हुआ है, ज़ख्मी हालत में, मुर्दा है, क्या है। बस फिर इसने फ़ोन किया तो मैं निकल गया, तो मैंने देख लिया कि ज़ख्मी की हालत में अस्पताल लेके जा रहा था। तो डॉक्टर को घूमते फिरते डॉक्टर कह रहा कि अल्लाह खैर करेगा। जब उसने देखा कि इसकी हालत बस मुश्किल है कि बच हो जाएगा, तो बस हमने सोचा कि ये तो वैसे भी शहीद हो गया तो हम घर में क्या करेगा, इसका बहन भाई है और बीवी है इसका, तो हम बहुत परेशान हो गया। उस टाइम तो हमको भी चक्कर भी आ गया जब हमने सुना कि ये शहीद हो गया, तो हम बहुत खफा था ना कि एक ही ज़रिया था ना। मेरा चोटे जो है इधर पीछे लगा हुआ है और इधर हाथ में लगा हुआ है, इधर पाँव में लगा हुआ है। डॉक्टर ने कहा था बस इधर से ये इधर अगल लगा हुआ है, ये चारे मारे नहीं है, ये लगा हुआ है ये। तो बाद में ये कह रहा था कि अभी तो ऑपरेशन के लिए बस सेट नहीं है, आपके से खून बहुत ज़्यादा निकल गया, तो बाद में ये ऑपरेशन कर देंगे, तकरीबन 10-15 दिन लग जाएंगे इसके बाद। तो वो कह रहा था कि बाद ये ऑपरेशन कर देंगे, सारे आपके जिस्म में सारा चारे रहेगा ना, उसके बाद में सारा ऑपरेशन कर देंगे और बाद में ये निकाल देंगे। इस तरह बात बिल्कुल ही नहीं था इधर, ऐसे बंदे या कोई सरकारी बंदा भी नहीं था या कोई ऐसे तालेब मालेब लोग भी नहीं था इधर सारा अमन पसंद लोग था। हर चीज़ में इधर इसी पलटे के साथ ये सारा ये लोगों ने किसी लोगों ने आंगन नहीं कर रहा था कि यार इधर कोई कर देगा या इसके पलटी के साथ करे, इस पलटी के साथ करे, किसी के साथ शामिल नहीं हो सकता था। सब जानते हैं कि मुझे संभलने में एक वक्त लगेगा। बाप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत एक सतून कह ले घर के लिए, बच्चों के लिए, इसका अंदाज़ा वही कर सकते हैं जिनका मतलब बाप नहीं है।